गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो कल हम पढ़ रहे थे एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो एग्जांपल किए थे हमने। द नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्टेप्स फॉर राइटिंग स्टेप्स फॉर राइटिंग स्टेप्स फॉर राइटिंग एम्पिरिकल फॉर्मूला। 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 तो इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, मैं बोल रहा हूं, सब लोग लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट पॉइंट, calculate the percentage of element calculate the percentage of element calculate the percentage of elements in the compound. Calculate the percentage of elements in the compound. First point, calculate the percentage of elements in the compound. Second point, divide the percentage of each element by its atomic mass. Divide the percentage of each element by its atomic mass. Divide percentage of each element by its atomic mass. उसी में लिखिए सेकेंड पॉइंट में फुल स्टॉप करके, this will give the relative number of moles. This will give the relative number of moles. This will give the relative number of moles of atoms. Relative number of moles of atoms of various elements present in the compound. Of various elements present in the compound. Third point, second done. Various elements present in the compound. Then third, divide the quotients. यहां मैं लिख रहा हूं, डिवाइड द quotients. अभी जो छूट गया बाद में करिएगा, फर्स्ट पॉइंट जो जिसका रह गया बाद में कर लीजिएगा। अभी थर्ड लिखिए, डिवाइड द quotients obtained in the first step. Divide the quotients obtained in the first step. Sorry, second step, not first. Second कर लो उसको. Divide the quotients obtained in the second step by the smallest number. Divide the quotient obtained in the second step by the smallest number among them. By the smallest number among them. Full stop. उसी में लिखे थर्ड पॉइंट में. So this will give
the simple ratio of moles. This will give the simple ratio of moles of various elements. This will give the simple ratio of moles of various elements. This will give the simple ratio of moles of various elements. Fourth point, multiply the value. Fourth point, multiply the values. Multiply the values obtained in third step. Multiply the values obtained in third step by a suitable integer. Multiply the values obtained in third step by a suitable integer. Multiply the values obtained in third step by the suitable integer, comma करके comma, if necessary by a suitable integer, comma, if necessary, in order to obtain, in order, उसी में आगे लिखिए, in order to obtain a whole number ratio. In order to obtain a whole number ratio. In order to obtain a whole number ratio. Then fifth point, फिफ्थ पॉइंट क्या, 4 ही लिखो, ठीक है, 4 पॉइंट ही बहुत है, फिफ्थ हटा दे रहा हूं मैं, चलिए डन. होल नंबर रेशियो, फोर्थ पॉइंट बोला होल नंबर रेशियो. प्रीवियस स्लाइड, दिस इज फर्स्ट स्लाइड गौरी. हाँ, अभी जिसका थर्ड सेकंड सब छूट गया, अभी बाद में लिखिएगा. अभी स्क्रीनशॉट डाल देगा कोई. नहीं, अभी मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, 10 बार रिपीट करूंगा भाई. नेक्स्ट हेडिंग, स्टेप्स फॉर राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. 1 घंटे की क्लास है, उसमें भी 10 बार रिपीट करूंगा तो कवर कितना होगा. अभी जिसका छूटा है, अभी स्क्रीनशॉट डाल देगा कोई जिसने कंप्लीट किया है, फिर वहां से नोट कर लीजिएगा. नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसमें भी फर्स्ट पॉइंट, लिखिए. फर्स्ट पॉइंट, स्टेप्स फॉर राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. फाइंड आउट द इंपेरिकल फॉर्मूला. फर्स्ट पॉइंट लिखिए. फाइंड आउट द empirical formula mass. Find out the empirical formula mass. Find out the empirical formula mass by adding the atomic masses of, by adding the atomic masses of, by adding the atomic masses of all the atoms, by adding the atomic masses of all the atoms present in the empirical formula. Masses of all the atoms present in the empirical formula of the compound, present in the empirical formula of the compound.
by adding the atomic masses of all the atoms present in the empirical formula of the compound. Done. Second point. Molecular formula will be represented by molecular formula will be represented molecular formula will be represented by molecular formula will be represented by empirical formula and यहाँ small n सबस्क्रिप्ट में स्मॉल n ये लिखा हुआ है. So molecular formula will be represented by empirical formula n. Third step, divide the molecular mass divide the molecular mass divide the molecular mass divide the molecular mass by the empirical formula mass and find out the value of n and find out the value of n find out the value of n. Done. ओके ठीक. आशीष क्या प्लीज सर सेंड द बुकलेट ऑन ग्रुप. तो भाई ग्रुप पे भेजा तो है बुकलेट, देखते नहीं हो क्या तुम लोग ग्रुप पे? ग्रुप पे कल ही तो भेजा था बुकलेट, होमवर्क भी डाला था. चलिए अब एग्जांपल क्वेश्चन करेंगे. ये स्टेप लिख लिया और उससे मैं आपको समझाता हूं. अब डाउट्स हैं? हाँ डाउट्स क्लियर करेंगे. पहले पढ़ लेते हैं ये, फिर डाउट्स करते हैं. डाउट्स एक साथ करेंगे. कल का आज का होमवर्क डालूंगा, उसके भी डाउट्स ले लीजिए, फिर वो डाउट्स करते हैं. चलिए अभी क्वेश्चन लिखे. चलिए अब मैं समझा रहा हूं. पॉइंट्स लिख लिया सबने? सिलेबस सेंड किया नहीं है? सिलेबस बताया तो है, कितनी बार बताऊं? इस फ्राइडे सैटरडे तक जितना हम पढ़ेंगे, फ्राइडे तक एटलीस्ट वहां तक आएगा एग्जाम में. फ्राइडे तक तो आने दो. पढ़ते रहो. जो अभी पढ़ रहे हैं डेली वो एग्जाम में आएगा. क्वेश्चन लिखिए. क्वेश्चन है कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. और ये इस बार का ही नहीं है, ऑलमोस्ट हर बार रहेगा ये फिक्स है. ऐसा नहीं कि चेंज होगा बार बार. जिस संडे को एग्जाम है उस वीक में उस वीक तक का सिलेबस आपके पास रहेगा. जरूरी नहीं एग्जैक्ट सैटरडे तक का, हो सकता है उस वीक तक या उस वीक के वेडनेसडे तक, जो भी है, बट ऑलमोस्ट उतना सिलेबस रहेगा. तो आप कंप्लीट ही बोल सकते हैं कि जब जिस वीक में आपका टेस्ट है उस वीक तक का सिलेबस. So calculate the empirical formula for a compound which contain, क्वेश्चन में दिया है which contain 26.6%. क्वेश्चन में 26.6% पोटेशियम दिया है एंड 35.4% क्रोमियम and 38% ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन बाय मास. तो आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है.
ब्रैकेट में एटॉमिक मासेस भी दिया है, वो सबको पता ही है। पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मासेस ऑफ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, पोटेशियम 31, वेरी गुड, 31 होता है या 39? फॉस्फोरस का 31 होता है। दूसरा बताइए, क्रोमियम, क्रोमियम का कितना होगा? वो भी याद है, भूल गए? क्रोमियम 52, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर 24, एटॉमिक मास 52। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना? 16, ये तो याद ही होगा। तो ये आपको गिवन है। अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है क्या? एम्पिरिकल फॉर्मूला, सॉल्यूशन। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप अब मैं समझा रहा हूं। जो जो स्टेप लिखे हैं वो सब लोग देखिए, जो जो स्टेप हमने लिखे हैं वो सारे स्टेप्स को फॉलो करिए। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा था कि कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, पहले एक बार समझ लो सब लोग अच्छे से। फर्स्ट पॉइंट, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट या एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फर्स्ट स्टेप इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। तो अभी तो क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको परसेंटेज दिया ही है, इतना परसेंट, ये परसेंटेज है, इतना परसेंटेज क्रोमियम, पोटेशियम एंड ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट है। तो इसको हमें निकालने का नीड है नहीं, पहला पॉइंट तो दिया है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, या मैं स्लाइड चेंज करता हूँ, या क्वेश्चन नोट कर लेना सबने, क्वेश्चन ही रफ करता हूँ यहाँ पे, स्लाइड चेंज करूंगा फिर दिक्कत आएगी। चलो, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, देखो इसमें हम कुछ टेबल बना रहे हैं, बस टेबल बना के एक बार टेबल समझ लीजिए, फिर आपका हो जाएगा क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, तो उसके लिए तो आपको पोटेशियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन, तो कंपाउंड में तीन एलिमेंट्स हैं और तीनों के परसेंटेज दे रखे हैं। पोटेशियम कितना दिया था हमें? 26.6, दूसरा हमको दिया था 35.4, 35.4, और लास्ट वन आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 38, 38%। ठीक है, ये परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है, ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप सब लोग पढ़ो क्या लिखा है। दूसरे स्टेप से हम क्या निकालते हैं? दूसरे स्टेप में हमने लिखा है कि जो परसेंटेज है इन एलिमेंट्स का, उनको इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, एटॉमिक वेट से डिवाइड करना है इस परसेंटेज को, और वहां से आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो एटम्स हैं उनका रेशियो मिलता है। कौन सा रेशियो मिलता है? देखो सेकंड लाइन पढ़ो, कौन सा रेशियो है? सिंपल रेशियो है या क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे हम पहले करेंगे 26.6 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास 39, ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ 35.4 डिवाइडेड बाय क्रोमियम का एटॉमिक मास 52, और थर्ड स्टेप में 38 डिवाइडेड बाय 60। ये सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम किसका कॉलम है बताओ भाई, पढ़ा नहीं क्या तुमने? कौन सा रेशियो है ये? मोलर रेशियो, ये मोलर रेशियो लिखवाया था। रुको अभी दिखाता हूँ, किसने भेजा था ये? अक्षता ने। इसमें सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। मैं पढ़ रहा हूँ दोबारा, ये जो अक्षता ने स्क्रीनशॉट भेजा है उसको, डिवाइड द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट बाय इट्स एटॉमिक मास, दिस विल गिव द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम है, दिस इज रिलेटिव नंबर, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। तो पूरा लिखने का नीड क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम, हम केवल रिलेटिव नंबर दिखा देते हैं कि जब आप इनके परसेंटेज को इनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेटिव नंबर मिलेगा। फिर देखिए स्क्रीनशॉट, अगर किसी का छूटा है नहीं कंप्लीट कर पाया तो देख लो, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं वही पॉइंट्स। थर्ड इसने क्या लिखा है,
Divide the quotient obtained in the second step by the smallest number among them. So this will give the simple ratio of moles of various element. तो थर्ड स्टेप में सिंपल रेशियो आएगा, यहां सिंपल रेशियो आया। अब ये कब आ रहा है, पहले अब इसको डिवाइड करो, 26.6 डिवाइडेड बाई 39, ये ऑलमोस्ट, मैं अभी लिख दे रहा हूं, पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, ये 0.68 7 के अराउंड, मतलब 0.68, और इसको डिवाइड करिए ये भी उतना ही आएगा 0.68 के अराउंड, और ये 2.60, तो 2.35 समथिंग इसके अराउंड आ जाएगा। डिवाइड करके देख लीजिए, ऑलमोस्ट इसके अराउंड आ रहा है, चेक कर लो सब लोग। 2.37, ठीक है, चलिए 37 कर देते हैं, 2.37 375, बस 2 डिजिट तक दिखाओ, पूरा डिवाइड करने का नीड नहीं है, 2.37 इतना, ठीक है। अभी देखो ये इतना समझ में आया, पहले स्टेप केवल फॉलो करना है और कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। पहले परसेंटेज, देन परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, जब डिवाइड करेंगे तो आपको रिलेटिव नंबर्स मिलेंगे, उसके बाद रिलेटिव नंबर जो मिला है, अब देखो थर्ड पॉइंट हमने क्या लिखा था सिंपल रेशियो वाला, कि जो आपको ये रिलेटिव नंबर मिले हैं इनमें जो सबसे छोटा होगा इन तीनों नंबर में, द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग देम, उसी से आपको इन तीनों को डिवाइड करना है। तो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 0.68, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है, 0.68। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू इन तीनों में जो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिलेगी दैट इज 0.68। अब इस 0.68 से आपको डिवाइड करना है इन तीनों को अगेन, और फिर आपको मिलेगा सिंपल रेशियो। तो 0.68 डिवाइडेड बाय 0.68, जो तीनों वैल्यूज थी इन तीनों को सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो, कोशेंट्स को, ये कोशेंट मिल गए, इन कोशेंट को सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड करना है। तो तीनों के कोशेंट को हमने सबसे छोटी वैल्यू 0.68 से डिवाइड किया, ये आ जाएगा क्या 1, ये आ जाएगा क्या 1, ये आ जाएगा क्या 1, 1 तो आएगा नहीं, सॉरी, लास्ट वन डिवाइड करेंगे कितना आएगा, देखो 3.5 के अराउंड ना, 0.7 2.4 3.58, यस 48, मतलब 3.5 के अराउंड, हाँ 0.7 इंटू 4 करेंगे 28 हो जाएगा। तो वहां से ये सिंपल रेशियो आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप पढ़ो सब लोग, रुको मैं खुद ही पढ़ता हूँ, क्या लिखा था इसने। अब लास्ट स्टेप ये है, मल्टीप्लाई द वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन थर्ड स्टेप बाय सुटेबल इंटीजर इफ नेसेसरी, अगर जरूरी है तो, ऐसा नहीं कि हर बार किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करना ही है, इन ऑर्डर टू गेट अ होल नंबर रेशियो। तो अभी हमारे पास सिंपल रेशियो के बाद अब हम निकालेंगे लास्ट स्टेप में होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। अब देखो इनको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके होल नंबर बनाना है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में फ्रैक्शन में आ गया ना, 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं, डिवाइड करेंगे तो। लेकिन ध्यान रहे, अब कोई कई लोग ऐसा करते हैं, सर इसको इंटीजर बनाना है तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ 1 इंटू 10 10, यहाँ 1 इंटू 10 10, और ये सीधा 35, तो ये तो बन गया होल नंबर, नॉर्मल पॉइंट हट गया सीधा 10 से। तो सीधा 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको, हमेशा स्टार्ट करना है स्मॉलेस्ट वैल्यूज के साथ। स्मॉलेस्ट वैल्यूज का मतलब है कि 1 2 से, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं। देन 2 से मल्टीप्लाई करो, अगर 1 इंटू 2 किया मैंने तो ये तो 2 हो जाएगा, ये भी 2, और ये 3.5 इंटू 2 होके 7, तो आ गया होल नंबर रेशियो, होल नंबर आ गए, इंटीजर आ गए 2 2 7। तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके स्टार्ट करना है, पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर 4 से चेक करो, ये नहीं कि सीधा 100 से मल्टीप्लाई करके और सीधा रेशियो निकाल दिया इंटीजर टाइप। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। तो स्मॉलेस्ट वैल्यूज के साथ आपको स्टार्ट करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई किया है हमने, सो 1 इंटू 2, हेयर 1 इंटू 2, दिस विल बी 2, एंड हेयर 3.5 इंटू 2, दिस विल गिव 7। ये आ गया होल नंबर रेशियो। सारे स्टेप खत्म, सारे स्टेप हमने जो लिखे थे वो खत्म हो गए। अब ये जो नंबर आ गया है यही आपको रिप्रेजेंट कर देना है एलिमेंट के सबस्क्रिप्ट में। तो इंपीरिकल फॉर्मूला, अब यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, इंपीरिकल फॉर्मूला,
empirical formula will be, जैसे ही होल नंबर आ गया अब उसी को इंपेरिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट कर दो। सो इंपेरिकल फॉर्मूला विल बी K2Cr2। के लिए कितना आया है 2, Cr के लिए कितना आया है 2, और ऑक्सीजन के लिए कितना आया होल नंबर रेशियो में 7। तो इनका रेशियो है 2:2:7, यानी K2Cr2O7। ये आ गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला K2Cr2O7, जो इनका लास्ट में होल नंबर का रेशियो आया उसको रिप्रेजेंट कर दिया। समझ में आया क्या सबको? क्लियर है? बस यही स्टेप फॉलो करने हैं और इन स्टेप को फॉलो करते हुए हमें इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो ये आ गया हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ऐसे ही हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखा है, उसके भी 2-3 स्टेप है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालना है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो नोट कर लीजिए ये, बस आपको इतनी टेबल बनानी है इसको सॉल्व करने के लिए। 4 कॉलम बनाने, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, रिलेटिव नंबर, सिंपल रेशियो, होल नंबर रेशियो एंड फाइनल आंसर। नोटेड? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट कर लीजिए पहले। डन। चलो, तो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रुकिए एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन लिखिए। अ कार्बन कंपाउंड, क्वेश्चन लिखो, अ कार्बन कंपाउंड कंटेन, अ कार्बन कंपाउंड, a carbon compound contain only carbon and oxygen, only carbon and oxygen. A carbon compound contain only carbon and oxygen, and its approximate and its molecular mass, इधर लिखो, and its molecular mass, and its molecular mass and its molecular mass is 290, and its molecular mass is 290. So a carbon compound contain only carbon and oxygen, and its molecular mass is 290. आगे से में लिखिए, this compound contain contain 50% of 50% by mass of 50% by mass of each element, by mass of each element, 50% by mass of each element. Then calculate the molecular formula. Then calculate the molecular formula. Molecular formula. So carbon compound contain only carbon and oxygen, and its molecular mass is 290. This compound contain 50% by mass of each element. Each element means carbon and oxygen both are present in 50% by mass. Then we have to calculate the molecular formula. Note करिए क्वेश्चन, रफ करता हूँ।
नोटेड। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकालो सब लोग, जैसे बताया है। टेबल बनाइए, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स का पहला टेबल, पहला कॉलम। फिर दूसरे स्टेप में हमने देखा था हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आते थे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स। सो रिलेटिव नंबर। फिर उसके बाद हमने देखा था कि इसके बाद आता है सिंपल रेशियो। अगर सिंपल रेशियो नॉर्मल रेशियो नहीं रहा तो फिर हम उसमें इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर बनाने के लिए। जरूरी नहीं है कि हर बार आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़े। तो आपके पास एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन, बोथ आर गिवन 50% एंड 50%। अब अगले स्टेप में क्या होता था? अगले स्टेप में ये होता था कि हम यहाँ पे डिवाइड करते थे। किससे डिवाइड करते थे? यहाँ पे डिवाइड करते थे इसको 50 अपॉन इसके एटॉमिक मास 12 से। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 50 अपॉन 16 से। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4.16 के अराउंड। 3.125 तो ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये रिलेशन आया। अब इस रिलेशन में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू उससे डिवाइड करना है। तो 4.16 के अराउंड जो है 3.12 से डिवाइड करते हैं। और यहाँ स्मॉलेस्ट वैल्यू 4, ये तो 3.125 को ही 3.125 से डिवाइड कर देंगे। तो 3.12 डिवाइडेड बाय 3.12, तो ये तो हो गया 1। यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.33। लास्ट टेबल जो है वो लास्ट टेबल हमारी किसकी आ रही है? लास्ट टेबल इधर रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये डिवाइड कर लेंगे 1.33, ये आ गया। अब इन दोनों नंबर्स में अब हमें इसको होल नंबर बनाना है। तो इसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी होल नंबर नहीं मिलेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1.33 इंटू 3, ये ऑलमोस्ट 3.99 हो जाएगा। 3.99 मीन्स व्हाट? 4 हो गया ना, 3.99 4 ही हो गया। और ये 1 इंटू 3, यानी 3 से मल्टीप्लाई करके मुझे 4 और 3 का रेशियो मिल रहा है। तो ये आ गया होल नंबर रेशियो। तो इंपीरिकल फॉर्मूला अब हम लिख सकते हैं, और इंपीरिकल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा? C4O3। सो empirical formula, so empirical formula C4O3, so empirical formula C4O3। समझ आया? क्लियर है? अभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, यहां तक नोट कर लीजिए। स्लाइड चेंज करता हूं फिर। नोटेड? ओके, चलिए देन ये इंपीरिकल फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्टेप देखो। फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए हमने पहला स्टेप क्या लिखा था कि आपको इंपीरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना है, पहला स्टेप। सब लोग स्टेप पढ़िए। फर्स्ट स्टेप लिखा था इंपीरिकल फॉर्मूला मास।
तो इंपिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा? जो इंपिरिकल फॉर्मूला उसमें मास को ऐड कर दो। तो कार्बन कितना था 4, तो 4 इंटू 12। ऑक्सीजन कितना था 3, तो 3 इंटू 16। सो ये कितना आ जाएगा 48 प्लस 48 कितना आ जाएगा 96। ये इंपिरिकल फॉर्मूला मास आ गया। अब उसके बाद हमने लिखा था कि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जो रिप्रेजेंट करेंगे, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इंपिरिकल फॉर्मूला n। यही लिखा था, देखिए सब लोग, इंपिरिकल फॉर्मूला, और यहां पे हमने लिखा था n। तो इंपिरिकल फॉर्मूला क्या है? C4O3n। यहां से आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और यही हमको निकालना है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, इसका मतलब मुझे n की वैल्यू चाहिए। n की वैल्यू आ जाएगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। और n की वैल्यू निकालने के लिए लास्ट स्टेप में, थर्ड स्टेप में हमने लिखा था फॉर n के लिए मैं इधर साइड में कर रहा हूं, n के लिए हमने लिखा था मॉलिक्यूलर मास को उसके इंपिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दीजिए। सो मॉलिक्यूलर मास विल बी डिवाइडेड बाय empirical formula mass। empirical formula mass, मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया है 290 दिया था ना, यस 290। एंड इंपिरिकल फॉर्मूला मास हमने निकाला है, कितना निकाला हमने 96। तो दिस विल बी 96, डिवाइड करिए इसको, कितना आ रहा है 102 टाइम्स, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आ जाएगा। इंपिरिकल फॉर्मूला मास 2 पॉइंट समथिंग 0 आएगा, तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स आ जाएगा। तो ये 2 अगर यहाँ पे रख देंगे, अच्छा 3 सॉरी 300 है ना, यस। सो 300 डिवाइडेड बाय 96 का राउंड, सो ये 3 के अराउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आप रख देंगे n की वैल्यू 3, n की वैल्यू आ गई तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू C4O3n, 3 रख देंगे तो क्या बन जाएगा C12O9। 3 रख के मल्टीप्लाई कर देंगे, n की वैल्यू 3 रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे तो C12O9। ये आंसर हो गया। समझ आया क्या सबको? तो अभी स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन आप देख के करिए जो स्टेप बताए हैं, सिंपल है, वैसे याद हो गया होगा सबको। 290 कैसे क्वेश्चन में दिया है, 290 रखा नहीं है मैंने, क्वेश्चन में दिया है 290 मॉलिक्यूलर मास, वो उठा के रखा है। तो अभी स्टार्टिंग में आप 1-2 क्वेश्चन स्टेप देख के कर सकते हैं, बट फिर आपको स्टेप याद, ये नहीं एग्जाम में थोड़ी ना आपको स्टेप देखने को मिलेगा, सिंपल है। एक बार 2-4 क्वेश्चन करोगे अपने आप प्रैक्टिस में आएगा तो याद हो जाएगा। क्या इंपिरिकल फॉर्मूला के लिए टेबल बनानी है, परसेंटेज को उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करो, एटॉमिक मास से डिवाइड करके जो नंबर आए उसमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उस स्मॉलेस्ट वैल्यू से सबको डिवाइड कर दीजिए। अगर वहां पे नॉर्मल रेशियो मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो उसको सूटेबल इंटीजर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेशियो लेके आना, वो आ गया इंपिरिकल फॉर्मूला। उसके बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसको लिखेंगे इंपिरिकल फॉर्मूला n, और n की वैल्यू निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास, वहां से n आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर। देखिए अभी कल आपको जो मैंने शेयर किया था बुकलेट, डाउट, एक मिनट, इसमें हम कर रहे थे क्या, एक्सरसाइज 1 मैंने आपको कुछ होमवर्क दिए थे ना, एक्सरसाइज 2 में दिए थे। चलिए बुकलेट खोलिए सब लोग। हाँ लेवल 1 दिया था ना मैंने नीचे पेज नंबर पे, बुकलेट में बुकलेट का पेज नंबर खोलिए।
बुकलेट का पेज नंबर 36। क्या 103 क्या है? लेवल 1 में भी है क्वेश्चन अलग से? हाँ चलो वही कर लो। चलो पेज नंबर 105, लेवल 1 कर रहे हैं ना, कल लेवल 1 के क्वेश्चन दिए थे ना। चलिए पहले उसको ही करवा देते हैं। तो लेवल 1 ही खोलिए, लेवल 1 जो आपका होमवर्क दिया था उस लेवल 1 में पेज नंबर 105, पेज नंबर 105 पे एक टॉपिक दिया हुआ है, इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दिख रहा है पेज नंबर 105 पे। क्वेश्चन नंबर 33 से 39, क्वेश्चन नंबर 33 टू 39 मिले क्वेश्चन सबको बुकलेट का? होमवर्क नहीं है अभी करना है, रुको तो, होमवर्क क्यों होगा, होमवर्क मैं बताऊंगा ना। 33 टू 39, चलिए इसमें दिया हुआ है an element, पहला 33 an element and another element combine to form the compound contain this 5 8 the formula of the compound। क्वेश्चन नंबर 34 करिए अभी, 34 अभी करना है नोटबुक में, तो सॉल्व कर रहे हैं आप 34। 33 होमवर्क रहेगा, सॉल्व करना इजी है वो। 34 है द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH। इस बार इंपीरिकल फॉर्मूला डायरेक्ट दिया हुआ है, निकालना नहीं है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट इज 78, व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 लाइन का सवाल है, बताइए आंसर क्या आएगा। क्या नीट का सेंड किया है बुकलेट? अरे यार मोल कंसेप्ट दोनों में सेम है बोल रहा हूँ, जेई का तो है, नीट का कहाँ है? नीट का नहीं सेंड किया है, जेई का नीट का मोल कंसेप्ट जो चीजें अभी पढ़ रहे कॉमन है। नीट और जेई में ऐसा नहीं है कि दोनों चीजें पूरा अलग अलग है दुनिया से। जेई नीट का डिफरेंस बस इतना है कि वहां पे जेई में थोड़ी टफ चीजें आएंगी, नीट में थोड़ी कम लेवल की चीजें आएंगी। तो अभी पूरी बुकलेट कहाँ कराई है, अभी इसमें एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन है बुकलेट में, अभी वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो दोनों के लिए कॉमन है। जहां मुझे एडवांस और मेंस के बच्चों, इंजीनियरिंग के बच्चों को एक्स्ट्रा देना होगा वो मैं नीट के बच्चों को होमवर्क नहीं दूंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। अभी जो आपको दिया गया है उतना करिए। C6H6 आया आंसर? कहाँ गया 30? हाँ तो C6H6 आया, C6H6 कैसे आएगा? डी ऑप्शन आ गया सबका। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, मॉलिक्यूलर वेट 78 और n की वैल्यू निकालनी होगी। मॉलिक्यूलर वेट है 78, इंपीरिकल फॉर्मूला है CH, इंपीरिकल फॉर्मूला इज CH। अब ये CH है, इस CH को हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHN, CHN मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके बाद आपको n की वैल्यू निकालनी है, n क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय इंपीरिकल मास। मॉलिक्यूलर मास है 78, इंपीरिकल मास CH का मास कितना होगा, कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, 13 बाय 13, सो 6, n की वैल्यू आ गई 6। सो इंपीरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H6। C6H6। चलिए तो एग्जाम में यहीं तक है, यहीं तक डालता हूँ मैं। क्या है आज वेडनेसडे ना, तो अभी आपके पास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन है, स्टार्टिंग से लेके जितना अब तक पढ़ा है। मतलब क्या क्या, मोल ट्रायंगल, मोल ट्रायंगल के बाद परसेंटेज कंपोजिशन,
परसेंटेज कंपोजिशन के बाद एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एंड देन इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सिलेबस रहेगा। तो 3 दिन है, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। और इसमें भी वेटेज की बात करें तो ये जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब ये एक नॉर्मल टॉपिक है, मतलब इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन ही मोल ट्रायंगल पे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसे नीट की बात करूं, अगर 30 क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनिक के भी रहेंगे ना 45 में, तो अगर 30 क्वेश्चन है, सर ये मेरे बुकलेट में 105 पेज पे क्वेश्चन नहीं है। कौन सी बुकलेट देख रही हो तुम? मैंने जो सेंड किया है ग्रुप पे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, पीडीएफ की। आप प्रिंटेड देख रहे हैं बुकलेट नंबर 2, तो मुझे नहीं पता फिर उसमें क्या पेज नंबर है। हाँ, हार्ड कॉपी पे देखिए कौन सा पेज नंबर 84 ये डाला है गौरी ने, देखिए। हार्ड कॉपी का मुझे फिर आइडिया नहीं है। आप, मैं जो आपको शेयर किया है ग्रुप पे उसकी बात कर रहा हूँ, पीडीएफ, ताकि सबका कॉमन रहे। नहीं, आधे लोग पीडीएफ देखेंगे, आधे लोग हार्ड कॉपी देखेंगे, फिर कंफ्यूज चलेंगे। तो आधों के पास हार्ड कॉपी है ही नहीं, इसलिए पीडीएफ दिया है कि सब लोग उसी को फॉलो करें। हाँ, लेट टेस्ट जो भी आपने ज्वाइन किया है, जो लास्ट वीक से, मतलब जो हमने स्टार्ट किया था मोल ट्रायंगल से, मोल ट्रायंगल से प्रिपरेशन कर लीजिए। मोल ट्रायंगल, उसके बाद जो अभी इसी वीक में हमने स्टार्ट किए थे, लास्ट वीक में पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन, देन एवरेज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, वो इस मंडे स्टार्ट किया था, एंड देन इंपीरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इतना ही है सिलेबस में, ठीक है, तो इतना ही रखते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। आफ्टर दैट, मोल ट्रायंगल में क्या है, मोल ट्रायंगल देख लीजिए क्या है, लेक्चर्स में पढ़ाया गया है। अभी आप ऊपर आ जाओ, उसी बुकलेट में पीडीएफ की बात कर रहा हूं मैं। पेज नंबर 36। आज अभी ये जो एक्सरसाइज है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, ये मैं होमवर्क डालूंगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये सब आप कर सकते हैं। सेक्शन ए हो गए, पढ़ चुके हैं हम। सेक्शन ए देखो, पेज नंबर पहले 36 पे जाओ तो सही। पेज नंबर 36, पीडीएफ का पेज नंबर 36। पीडीएफ में पेज नंबर 36 पे आपको देखो, सेक्शन ए सेक्शन बी दिख रहा है, ये अभी मैं होमवर्क डाल दूंगा ग्रुप पे। सेक्शन ए हम पढ़ चुके हैं, जो कि नॉर्मल मोल ट्रायंगल बेस्ड को है। सेक्शन बी आपको दिख रहा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वो अभी नहीं पढ़ा है, वो छोड़ सकते हैं। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैसेस एसटीपी, एवरेज मोलर मास, ये हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन बी हो जाएगा। देन सेक्शन सी है इंपेरिकल फार्मूला, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए गिवन कंपाउंड, परसेंटेज बाय मोल, तो ये हम कर सकते हैं। अब इसका पहला क्वेश्चन है C1, द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज दिस, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था। इंपेरिकल फार्मूला CS2O दिया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा C1, आंसर बताइए। सेक्शन सी के C1 की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पेज नंबर 36 पे सेक्शन सी का C1। आंसर बताइए इसका क्या आएगा C1 का। और क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बुकलेट है आपके पास, जो होमवर्क मैं डाल रहा हूँ स्टार्टिंग से, जो लोग कर रहे हैं क्लासेस वो तो कंटिन्यूसली कर रहे हैं। जिन लोगों ने होमवर्क बीच में छोड़ा है या नहीं किया है, क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए, तभी पेपर में हो पाएगा। ये मत सोच के जाना कि बस आता है हमको, क्या क्या करना है, मोल ट्रायंगल में क्या होता है, पढ़ के जाओगे तो नहीं होगा। क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना बेटर आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। केवल आने से फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आता है आपको मोल ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है कि नंबर ऑफ मोल्स मास बाय जीएमएम याद करके चले गए, तो एग्जाम में 45 में से 20 क्वेश्चन करके आओगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको अपना मार्क्स इंक्रीज करना है, टाइम बचाना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, तो वहां पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। क्या आंसर आया? आंसर इज बी, C4H8O4। बी आ गया।
ठीक है, गुड। तो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे नॉर्मल, ये इंपीरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड, मोल ट्रायंगल बेस्ड। मोल ट्रायंगल में हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सब लोग अच्छे से कर लीजिए। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा एग्जाम में, मैं फिर बता रहा हूँ। आता सबको है, फॉर्मूला सबको याद रहेगा कि नंबर ऑफ मोल्स के हमने फॉर्मूला पढ़े, नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय Na, मास अपॉन जीएमएम, या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। सबको पूरी क्लास को फॉर्मूले इतने थोड़े थोड़े याद होंगे मोल्स के। यही है मोल ट्रायंगल, वॉल्यूम का रिलेशन, मास का रिलेशन, नंबर ऑफ एंटिटीज का रिलेशन। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम में मार्क्स नहीं आएगा। ये आपको मैंने पहली ही क्लास में बताया था कि केवल आने से फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करिए। देन इसके बाद है क्वेश्चन नंबर C2। C2 बताओ। C2 में हम पूरा स्टेप करना पड़ेगा। C1 आ गया सबका आंसर, बी ऑप्शन। C2 करिए, C2। C2 में आपको पहले इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा क्योंकि इस बार उसने परसेंटेज ऑफ मास दे रखा है एलिमेंट्स का। एटॉमिक वेट भी क्वेश्चन में दे रखा है C2 में। So molecular formula of the compound which contain 20% calcium and 80% bromine. If molecular weight of compound is 200, then we have to calculate the molecular formula. Section C का C2। टेबल बना के करने पड़ेगी। टेबल बनाइए, उनका परसेंटेज दिया है, उनके परसेंटेज को पहले उनके एटॉमिक मास से डिवाइड किया जाएगा तो वहां से रिलेटिव नंबर आएगा। फिर रिलेटिव नंबर को डिवाइड करेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है। Br इज ब्रोमीन, दिया तो है एटॉमिक वेट ब्रैकेट में, क्वेश्चन तो देखो। ब्रोमीन का एटॉमिक वेट लिखा नहीं है ब्रैकेट में। क्या आया सी आंसर? सेकंड ऑप्शन Ca2Br। Ca2Br डी ऑप्शन। अच्छा, मृणालिनी का डी ऑप्शन आ रहा है, सी आपका बी ऑप्शन आ रहा है। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है वो तो बताओ पहले। इंपीरिकल फॉर्मूला क्या है? ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना, इंपीरिकल फॉर्मूला निकाला होगा सबने। इंपीरिकल फॉर्मूला Ca2Br। Ca2Br। ठीक है, Ca2Br इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया। उसके बाद आपको कम इसका मास निकालेंगे तो मास इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे कैल्शियम 40 और वो हो जाएगा 160। 40 प्लस 80 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 200। तो इंपीरिकल फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास सेम आ गया। एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एन आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 200, 1। सो मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम लाइक इंपीरिकल फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो गया क्या? Ca2Br।
यही हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम आएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर। बाकी C3 C4 देखिए क्वेश्चन एक बार C4 पढ़िए। कंपाउंड possess 8% सल्फर बाय मास, द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। लीस्ट मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन कराया था ना। इंपिरिकल फॉर्मूला क्या रहा है मृणालिनी, CA2Br। बाकी सबका तो CaBr2 आ रहा है। कैल्शियम के लिए कितना है आपका होल नंबर रेशियो 2, और ब्रोमीन के लिए 1। चेक करना एक बार। चलिए ये मैं होमवर्क डालता हूँ, आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, सेक्शन ABC जो भी है। सबका आंसर यही आ रहा है CaBr2, एक बार चेक करना तुम। Ca half Br1। हाँ तो Ca half आ रहा है, Br1 तो फिर तो वही हुआ ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी तो Ca1 हो जाएगा, Br2 हो जाएगा। तो CaBr2 ही तो आया, तुम उल्टा लिख रही हो। Ca अगर हाफ है, ये देखो इधर, Ca अगर तुम्हारा ये हाफ आ गया है इसका रेशियो, और Br का रेशियो आपका 1 आ गया है, तो अब इसको होल नंबर रेशियो बनाना है। तो इसको होल नंबर रेशियो बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। 2 का मल्टीप्लाई करके ये 2 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होके 1। तो इसके लिए रेशियो 1 आया, और इसके लिए होल नंबर 2 आया। तो Ca के साथ आएगा 1 और Br के साथ 2 ना, यही तो करेंगे। समझा क्या। चलिए ठीक है, ओके, फिर क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। मैं होमवर्क भी डाल देता हूँ, और आज तक जितना पढ़ा है सिलेबस वो है, मैं ग्रुप पे एक बार डाल भी देता हूँ सिलेबस क्या क्या एग्जाम का फाइनल। ओके, चलिए बाय।